Hello everyone, welcome back to my channel Math Fun Walla. Today we are going to start the new chapter, that is dual nature of radiation and matter. In this chapter we are going to discuss the radiations or light, means dual nature of radiation, wave nature of radiation, particle nature of radiation. Radiation means light, dual nature and particle nature of light. The basic overview of this chapter is only this, and we are going to discuss who are those has discovered these things, as they had described the theories, put the Newton's law, corpuscular theory, then Huygens principle, then particle nature, then wave nature. Means जिन्होंने भी जो भी अपनी थ्योरीज दी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. Now, beginning with the chapter dual nature of radiation matter, first we have to study in this about the particle and the wave nature. What are these? So, just write down that radiations basic meaning of radiation means light follows both पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. तो हम दोनों डिस्कस करेंगे. पार्टिकल वेव हमने पढ़ा है, या फिर मैं अगर वो जो चैप्टर बचे हैं जैसे कि वेव ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स, उनको बाद में करा दूंगा, लेकिन ये पहले थ्योरेटिकल चैप्टर, मार्किंग स्कीम भी इसकी अच्छी बोर्ड के लिए, तो इसे जानना जरूरी है, तो इसे करते हैं पहले. तो पार्टिकल वेव, पार्टिकल में हमने तीन कैटेगरी डिस्क्राइब की हैं. तीन चीज हमने डिस्क्राइब की है पार्टिकल में. पहली है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड पॉम्प्ट इफेक्ट. ये तीनों चीज हम पढ़ेंगे. और वेव नेचर के अंदर हम पढ़ेंगे, मतलब वेव नेचर के अंदर जो कैटेगरीज की गई हैं, जो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन उस चैप्टर को हम बाद में कराएंगे. उनका नाम है इंटरफेरेंस, YDSC, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. ये सारी टॉपिक वेव को सपोर्ट करती हैं. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्प्ट इफेक्ट और जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इसको सपोर्ट करता है पार्टिकल नेचर को. तो लिखते हैं, चलो. वेव के अंदर तो आप लिख लो YDSC, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. ऐसा पोलराइजेशन इस साल हट गया है, पर लिख लो. These are generally things we are going to discuss in the wave. And in particle first we have a first we have a photoelectric effect. Photoelectric effect. Next is black body radiation. Mainly these two. Another is there Comte effect, then that we will discuss further basis. Now, just write down these things. These are the basics. Now, next we are going to discuss. This is the first thing, radiations. As radiations is here and matter. Matter is also here. So in matter also there are two classifications: wave, particle. Radiation is this, and now second is wave. Second is matter. In matter also there are two classification. First is a particle, second is wave. Matter. This is the wave and this is the particle. Now the wave nature have a views by Germer-Davisson experiment. In this we are going to discuss the Germer-Davisson experiment. Only one scientist who was there, Germer-Davisson experiment was there to supporting the wave. And for particle we have a well established relation. Established spelling वाला तो means for matter
in particle category we have a well established relation, as we have discussed the part. Now we are going to discuss these facts. So in matter case, the particle nature has already well developed a testament, but in wave, only who was supporting the wave nature was there: Germer Davison experiment. This is the experiment of the German Davison scientist. He was a great scientist and he was clarifying the wave nature. And for particle, there is a well established already, as we are going to discuss the particle photoelectric effect and black body radiation. So these are the two categories, radiation and matter, and we have described the particle, wave particle. In radiation, we have a photoelectric effect, black body radiation. In wave nature, we have a wide ESC, interference, diffraction, polarization. Now in matter, same both two categories, these and these, wave and particle. Wave, German Davison experiment, particle, well established relation was there. Now we are going to start the photoelectric effect from first onwards. But before going on towards the photoelectric effect, we are going to discuss the Newton's corpuscular theory, which has been just showing, giving advices towards the particle nature, supporting the particle nature. That was the Newton's corpuscular theory, developed in 1675. तो वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले, मतलब पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने पार्टिकल या वेव को सपोर्ट किया है, और फिर डोमिनेंसी किसको ज्यादा दी गई है. वैसे तो लाइट आप जानते हो ड्यूअल नेचर है, दोनों नेचरों को शो करती है, लेकिन फिर भी डोमिनेंसी किसी एक को दी गई है, जो कि हमारे पार्टिकल नेचर को डोमिनेट किया गया है. तो हम डिस्कस करते हैं. नाउ डिस्कस करते हैं हम थ्योरीज. Now theories. First we are going to discuss Newton's corpuscular theory. थ्योरीज में पहली थ्योरी है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. पहले सबसे पहले यही आई थी, इन्होंने बताया लाइट के ऊपर कोई चीज इन्होंने बताई थी. It was developed in 1675. Newton's corpuscular theory was developed in 1675. तो इन्होंने इसमें क्या कहा था कि इन्होंने कहा था, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट स्टेटमेंट है. जस्ट न्यूटन सेड दैट दिस corpuscular are light have a particles, corpuscular particles. These are the massless particles, and they were just going in a form of particle nature. They just means the Newton's corpuscular theory supporting. This theory supporting particle nature. After this theory, Huygens had came, and Huygens have a views according to the wave. Huygens ने कहा, उन्होंने अपने व्यूज दिए, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं था. उन्होंने ये कहा कि जो वेव है, हाइजेंस ने जो लाइट है वो वेव नेचर को सपोर्ट करती है, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग वेव को सपोर्ट कर रहे थे. हाइजेंस सपोर्टिंग द वेव. तो आप लिख सकते हो हाइजेंस के बारे में, सेकंड स्टेटमेंट में लिख सकते हो. हाइजेंस का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था. इन पे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था, पूरा सब कुछ प्रॉपर वे में कराया था, जब इन्होंने डिसाइड किया था कि हाँ ये सपोर्ट कर रहे हैं पार्टिकल नेचर को. अब लेकिन जब हाइजेंस आए इसके बाद, तो हाइजेंस ने कहा, बिना एक्सपेरिमेंट के अपने व्यूज दे दिए. जैसे हाइपोथेसिस कहते हैं ना, हाइपोथेसिस, व्यूज दे देना किसी चीज पे थीसिस कर देना विदाउट प्रूफ. तो इन्होंने कह दिया कि वो सपोर्ट कर रहे हैं वेव को. तो हाइजेंस सजेस्टेड दैट लाइट इज द वेव.
Huygens suggested that light is wave. हाइजेंस ने सजेस्ट किया कि लाइट इज अ वेव. इनके बाद फिर हाइजेंस ने जब वेव सजेस्ट किया, पहले नंबर पे, दूसरे पे थी, तीसरे पे मतलब थर्ड टाइम पे साइंटिस्ट तो कोई नहीं थे, लेकिन कुछ लॉज थे जो हमने डिस्कस किए थे, कुछ रूल्स थे जैसे कि डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, YDSC, ये आए. इन्होंने भी वेव को ही सपोर्ट किया. थर्ड में आप डाल सकते हो लेटर YDSC की फॉर्म है, फुल फॉर्म है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, and polarization. These all have suggested, means these are the not the name of the scientists, these are the topics, these are the those studies which are supporting only the wave nature, तो इन्होंने YDSC ने, इंटरफेरेंस ने, डिफ्रैक्शन ने, पोलराइजेशन ने सजेस्ट किया दैट लाइट इज नॉट अ पार्टिकल. मीन्स लाइट इज अ वेव. ये कह रहे थे लाइट एक वेव है, पार्टिकल नहीं है, तो लाइट वेव कह रहे थे, तो इन्होंने कहा लाइट इज नॉट अ पार्टिकल. उसके बाद फ्रेंड में आए एल्बर्ट आइंस्टीन, और फिर से वही न्यूटन वाली बात एंड में आके सही हो गई और डोमिनेंसी मिल गई पार्टिकल नेचर को. ये सब गए. एंड में एल्बर्ट आइंस्टीन आए. एल्बर्ट आइंस्टीन जब आए तो ये इन्होंने तो अपनी ये दी थी 1675 में दी थी अपनी हाइपोथेसिस. इन्होंने तो अपनी दी थी 1675 में, और जो एल्बर्ट आइंस्टीन आए थे उन्होंने अपनी 1887 में दी थी. अब गैप देख लो कितना है, कितने ईयर्स का गैप है या फिर कितना समय का अंतर है वो देख लो. 1675, 1887. तो 1887 में उन्होंने कहा कि पार्टिकल नेचर जो है वो लाइट को डोमिनेंसी देनी चाहिए और पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करना चाहिए. एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, मतलब न्यूटन वाली बात सही हो गई. तो इन 1887 पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट गॉट इम्पोर्टेंस. और इन्होंने ये बात ऐसी नहीं कही थी कि अपनी थीसिस दे दी, इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो करवाया था, एक्सपेरिमेंट करा के ये बात कही थी. और ये क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था. तो इन 1887 पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट got importance because of फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हम डिस्कस करेंगे. तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था इन 1887. और उन्होंने कहा था कि लाइट जो है हमें पार्टिकल नेचर कहना चाहिए और इम्पोर्टेंस भी हमें पार्टिकल नेचर को देनी चाहिए, ना कि वेव को. तो उन्होंने कह दिया लाइट गॉट इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इन्होंने कहा कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम डोमिनेंसी देंगे और उसी को सपोर्ट करेंगे. तो एंड में फिर इनकी की बात सही थी. और वैसे हम जानते हैं आज की जनरेशन में, आज के टाइम पे, कि जो लाइट होती है वो ड्यूअल नेचर होती है, जो दोनों ही नेचर्स को शो करती है, वेव नेचर को भी और पार्टिकल नेचर को भी. तो ये चार वो थे, इनको नोट कर लीजिए जल्दी वीडियो को पॉज करके. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर. हाँ, तो अब एल्बर्ट आइंस्टीन की उस थ्योरी के बाद हम डिस्कस करेंगे. अब एल्बर्ट आइंस्टीन ने, आपने देखा था कि अभी एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना डिस्कशन दे दिया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए उन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डोमिनेंसी दे दी थी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1884. अब हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है व्हेन रेडिएशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ इज incidented, fall, dropped, bombarded, कुछ भी कह लो, ऑन द मेटल सरफेस. जब किसी मेटल सरफेस पे आप किसी रेडिएशन ऑफ लाइट को फॉल कराओगे किसी मेटल की सरफेस पे, तो वहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो
इलेक्ट्रॉन में एमिटेड, इसको पूरी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. When radiations of high frequency or low wavelength is incident on a metal surface, then electrons may be emitted. This is known as photoelectric effect. Generally, the photoelectric effect just combined by two words, photon plus electrons. Photon plus electrons. Now, अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो ये होता है, ये होता है. जैसे मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है. ये कोई मेटल सरफेस हो गई और इसमें बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो भी है ये बना हुआ है, तो मैं बताया बना हुआ है, एटम एक एटम की तरह ट्रीट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है इसमें, तो ये बना हुआ है. ये हमारी एक मेटल शीट हो गई, ये मेटल सरफेस हो गई. अब तो मैं बताया इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं इसमें, आराम से रखे हुए हैं, आराम से रखे हुए हैं. एक बात बताता हूँ, इसमें जो सरफेस से जो मेटल्स होते हैं ना, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और सरफेस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स और सरफेस इलेक्ट्रॉन्स बात एक ही है, क्योंकि वो ऊपर की सतह पर, ये ऊपर की सरफेस पे होते हैं, उन्हें कहते हैं. इससे मतलब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फ्री होते हैं, और हम सरफेस इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सरफेस पे होते हैं और इतनी ज्यादा स्लाइटली बॉन्डेड नहीं होते, तो आसानी से एमिट हो सकते हैं ऊपर वाले, इसलिए सरफेस इलेक्ट्रॉन ऊपर वालों को या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. अब हमने बात कर ली इसकी, तो अब मेटल सरफेस हुई, हमने डेफिनेशन देखी भाई, रेडिएशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी. हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब है किसी रेडिएशन या किसी लाइट की हाई फ्रिक्वेंसी, जैसे विबग्योर 10th क्लास में पढ़ा होगा, विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू. तो इस तरह हमने पूरा वो था रेड, तो हमने देखा था रेड होता है ऊपर, वायलेंट होता है, तो ये इनके फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, इस तरह हमने देखा था. तो जब भी हम किसी भी हाई फ्रिक्वेंसी या लो वेवलेंथ, क्योंकि जानते हो आप एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, एफ इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है. तो हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ बात तो एक ही है, ठीक है. तो जब हाई फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ या आप कह सकते हो रेडिएशन जो होगी, या लो वेवलेंथ की जो रेडिएशन होगी, जब हम इसे फॉल कराएंगे ऐसे करके, फॉल कराएंगे ये रेडिएशन, जब ये फॉल होंगे इस मेटल सरफेस पर, तो हाँ, तो मेटल सरफेस हो गई, ये रेडिएशन हो गई. ये याद रखना, ये रेडिएशन हाई फ्रिक्वेंसी की होंगी या फिर आप कह सकते हो लो वेवलेंथ की होंगी, बात एक ही है. जब ये फॉल करेंगे इस मेटल शीट पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ये निकलना है, इलेक्ट्रॉन एमिटेड है, ये इलेक्ट्रॉन्स है. इस पूरी प्रोसेस को, बस इस वाली पूरी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? पूरी प्रोसेस को इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लिखे आनी पड़ेगी. डायग्राम बनाया हुआ पूरे नंबर मिल जाएंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा, फोटोन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स लिखाना. इसमें एक और चीज होती है, अब इसका एक न्यूमेरिकल चीज आ जाती है इसमें, कि कितनी एनर्जी लगेगी इन फोटोन्स या इन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए. तो उसका एक फॉर्मूला होता है, इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू एच एफ. एफ फ्रिक्वेंसी, एच प्लैंक कांस्टेंट, ई एनर्जी हो गया, ई इक्वल्स टू एफ हम जानते हैं सी अपॉन लैम्डा होता है, लैम्डा की इनवर्स प्रोपोर्शन, एच सी अपॉन लैम्डा. ये हो गया पूरा अलग अलग, ठीक है, ये बेसिस में, ये बेसिस में. अब यहाँ पर मैं देखूँ एच, यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ, सी स्पीड ऑफ लाइट, एच यहाँ प्लैंक कांस्टेंट हो गया, सी स्पीड ऑफ लाइट हो गया, और लैम्डा वेवलेंथ हो गया. इन टर्म से तो आप नो अच्छी तरह से, ठीक है. ई होती है एनर्जी एमिटेड, ई हो गया एनर्जी ड्यू टू एमिशन, ठीक है, एनर्जी ड्यू टू एमिशन. एच प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, सी स्पीड ऑफ लाइट है. स्पीड ऑफ लाइट आप सब जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है. लैम्डा सब जानते हैं वेवलेंथ होती है. एच सब जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट होता है. एच की वैल्यू जो होती है, एच इक्वल्स टू 6.626
6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। एच की वैल्यू ये होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये एच की वैल्यू होती है, ठीक है। ई हो गया एनर्जी ड्यू टू एमिशन, ठीक है। एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यूज भी हो गई। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होगा। अगर आपसे पूछ ले कि ये मेटल सरफेस है और एमिशन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के द्वारा कितनी एनर्जी लगेगी, तो आप बता सकते हो एच एफ से। या फिर आपको प्लैंक कांस्टेंट है, फ्रिक्वेंसी दे दे, या फिर लैम्डा दे दे, तो एस सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि एच और सी तो कांस्टेंट है आपको पता है। लैम्डा दे दो, आप एनर्जी निकाल लोगे। अब सुनो, इसकी एक ट्रिक और होती है, इसकी एक ट्रिक और होती है। ये तो आप ऐसे नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये हो गया लॉन्ग कट हो गया, मतलब अगर आपको एच डालना पड़ेगा, पहले ये को डालना पड़ेगा, फिर सी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर लैम्डा डालना पड़ेगा, वो भी पता नहीं एंगस्ट्रम में हो, नैनोमीटर में हो, मीटर में हो, पता नहीं किस में हो। तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन एक ट्रिकी मेथड है जो आसानी से आपको निकालने में हेल्प करेगा, लेकिन वो कंडीशन है ब्लड है। तो आप इसे नोट कर लो, बहुत जरूरी है। पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन है, पूरे 3 या 4 नंबर मिल जाएंगे अगर लिखे है तो। अब सुनो, इसकी ट्रिक क्या होती है। अगर आपको इससे नहीं करना, ट्रिक से करना है, तो कैसे करोगे। अब अगर आपको ट्रिक से करना है तो कैसे करोगे। ट्रिक ये होती है, एनर्जी ड्यू टू एमिशन अगर आपको निकालनी हो तो ट्रिक ये होती है कि एनर्जी इक्वल्स टू आप लिखना, इक्वल्स टू आप लिखना 1240। ये फॉर्मूला रटना है, लर्न करना है। ये 1240 फिक्स वैल्यू निकाली गई है, अब मैं बता भी दूंगा कैसे आई है। 1240 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या है, अगर आपको एनर्जी पूछे और आपको लैम्डा दे दिया हो, लैम्डा आपका नैनोमीटर में हो, तो आप 1240 में उस नैनोमीटर वाले लैम्डा का भाग दे देना, आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। पर एनर्जी की यूनिट आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में लिख सकते हो, लेकिन बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट एनर्जी की जूल होती है। तो पर आपको बस जब नैनोमीटर में आपको लैम्डा दिया जाएगा तो आप इसी तरीके से करना, डिवाइड दे देना, डिवाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बस एक काम और कर देना, जूल में बदल देना। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। वैसे आप उससे भी याद रख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो बस ये आसान तरीका है उससे, लेकिन ये याद रखना लैम्डा जो है नैनोमीटर में होना चाहिए जब लगाना है इसे, वरना उसी को प्रेफर करना। तो ये होगी ट्रिक एनर्जी निकालने की, एमिशन, एनर्जी ऑफ एमिशन अगर आपको निकालना हो। दोनों मेथड एक ही है। और तुम कहो सर ये आया कहाँ से, ये भैया आया कहाँ से, तो ये आया भाई साहब देखो, उसका फॉर्मूला क्या था, वो वाला फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो वही है, आया तो सब कुछ वही से है, एस सी अपॉन लैम्डा। किया कुछ नहीं है, एच की वैल्यू डाली, सी की वैल्यू डाली, सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है, लैम्डा को फिर नैनोमीटर में, जब ये फॉर्मूला आया है। तो इस तरीके से उन्होंने किया है, ये कांस्टेंट है। इस तरीके से मैं सॉल्व करके ट्रिक बना दी कि लैम्डा अगर नैनोमीटर में मिल जाए और 1240 में भाग दे देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर, उसको जूल में बदल देना, मल्टीप्लाई करके 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 का, तो आसानी से हो जाएगा। तो इसे भी नोट कर लेना बहुत जरूरी है। अब सुनो आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी ये है, अब ये होगी आपकी ट्रिक। अब आपको हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर डिस्कशन, हम फोटोन्स पर डिस्कशन करेंगे। फोटोन्स के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जानेंगे, क्या होते हैं फोटोन्स, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या नाम है फोटोन्स के, फोटोन्स क्या क्या चीज शो करते हैं, फोटोन्स की क्या क्या चीज निकाली जा सकती है। मतलब बेसिक चीज ये है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब सुनो क्या होता है, हेडिंग डालो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पहला पॉइंट इसमें लिख लो। इन जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है ना, जैसे नेचर था लाइट था, लाइट फ्लो कर रही है, मतलब लाइट फ्लो या जा रही है, तो पार्टिकल नेचर है। तो लाइट के पार्टिकल्स को, पहला पॉइंट यही है, लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन कहा जाता है, और एनर्जी पैकेट्स कहा जाता है, और क्वांटा कहा जाता है। 3 नाम है, तो लिख लो आप, मैं लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ। द पार्टिकल्स
of light. The particles of light are known as photons or called as photons or energy packets और क्वांटा पार्टिकल ऑफ लाइट भी कहा गया है। QUANTA, चाहे ये वर्ड यूज कर लो, चाहे ये वर्ड यूज कर लो, चाहे क्वांटा यूज कर लो, बात एक ही है। इनको कहा गया है ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है कि फोटोन्स को क्या क्या कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब पॉइंट मतलब प्रॉपर्टी सारी चीजें आ जाएंगी क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भाई साहब जो मास होता है ना फोटोन का, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब कि मैं बताता हूँ, जो फोटोन होता है फोटोन का मास डिफाइन नहीं किया जा सकता। द मास ऑफ द फोटोन कैन नॉट बी डिफाइंड, बट एट द रेस्ट पोजीशन या स्टैटिक पोजीशन पे जो मास होता है फोटोन का वो 0 होता है। ये आप लर्न कर सकते हो। और वैसे मास ऑफ फोटोन डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्लियर बता रहा हूँ, नहीं किया जा सकता डिफाइन। मास ऑफ फोटोन यू कांट डिफाइन। तो आप सेकंड पॉइंट डालेंगे, मैं लिखा देता हूँ जरा उनको, देखता हूँ कैमरे में विजन आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, सही आ रहा है। तो पार्टिकल ऑफ लाइट फोटोन्स हो गया, एनर्जी क्वांटास हो गया, वो एनर्जी पैकेट्स हो गया और क्वांटा हो गया। अब सेकंड पॉइंट, द मास, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ऐसे लिखते जाना एक ही उसमें, ये पूरा पार्टिकल के अंदर है। द मास ऑफ फोटोन कैन नॉट बी डिफाइंड बट at static position or at rest it is 0। और ये किसने दिया था या किसके द्वारा था? बाय न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन की मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग था ये। तो आप 0 का ले सकते हो बाय न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्या है बेसिक मीनिंग यही है कि फोटोन का मास डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फोटोन स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से चलता है। रेस्ट पोजीशन पे फोटोन का मास 0 होता है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट डालो भैया। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि फोटोन जो है हमेशा, जो मैंने अभी बोला था स्पीड ऑफ लाइट, वो ही है कि हमेशा जो फोटोन है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करता है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप लिख सकते हो अ फोटोन ऑलवेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। A photon is always travel with speed of light that is 299,792। मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये तो हो गई वो वाली फॉर्म, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जब हम लिखते हैं तो 3 × 10⁸ लिख देते हैं। तो 458 मीटर पर सेकंड, 458 मीटर पर सेकंड। और ये इसे याद मत करना, ये तो मैंने न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा दिया है वैसे ही, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, अप्रोक्सीमेट करके हम वैल्यू लेते हैं लाइट की, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिया है उन्होंने। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड होती है ये इरेस्पेक्टिव। लेकिन एक बात याद रखना, ये स्पीड ऑफ लाइट तो होती है, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई, मतलब कि ये इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट स्टैंडर्ड, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू तो यही है 299,792,458 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये एक एग्जैक्ट एक्यूरेट मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और इसी को यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हो इससे अगर कैलकुलेशन करने बैठे तो फिजिक्स हो गई। ठीक है, तो
रेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, ये थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट डालो, और इस ये जो रेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बढ़ाया है ना, ये जो रेस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बढ़ाया है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिफाइन कर रहा है, समझ रहे हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। अच्छा तो अब इसे रब कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, चौथा पॉइंट लिखिए, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अभी इसके अभी कम से कम इसके 7 पॉइंट है, 7 या 8 करीब 7 पॉइंट है शायद, 3 तो ये हो गया, मैं चौथा लिखा था। चलो ये सब पूरा चल रहा है फोटोन के ऊपर, फोटोन के नाम हो गए, फोटोन की एनर्जी हो गई, फोटोन की स्पीड हो गई, फोटोन 0 होता है, हम डिफाइन नहीं कर सकते फोटोन के मास को, रेस्ट पे 0 होता है, तो ये सारी चीज फोटोन के बारे में। अभी अगली प्रॉपर्टी जो आएगी वो ये आएगी, फोटोन इज चार्जलेस, फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन चार्जलेस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वो डेविएट नहीं होगा, डेविएट नहीं होता, अनडेविएटेड रहता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे, इसलिए वो चौथा पॉइंट। अ फोटोन इज चार्जलेस मींस न्यूट्रल, मार्कर बस बताइएगा। हाँ तो फोटोन चौथा पॉइंट, अ फोटोन इज चार्जलेस means neutral and cannot be deviated in electric field and magnetic field। तो इसे लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, तो इस लैंग्वेज में आप लिखोगे and undeviated in electric and magnetic फील्ड, जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी। समझ रहे हो मीनिंग, चार्जलेस होता है फोटोन, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। अगर आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो तो ये सीधा निकल जाएगा, डेविएट नहीं होगा, रास्ता नहीं मोड़ेगा आपने, ठीक है। ये होगी चौथी प्रॉपर्टी, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट लिख लो आप। पांचवा पॉइंट क्या है, ये डिपेंड है या बेस्ड है मोमेंटम के ऊपर, ये मोमेंटम को डिफाइन करता है। तो ये कहता है कि ईच फोटोन हैव अ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। क्या कहता है कि जो फोटोन होता है उसकी डेफिनेट एनर्जी मतलब फिक्स्ड एनर्जी होती है और फिक्स्ड मोमेंटम होता है। अब होता क्या है वो सुन लो। तो फिफ्थ पॉइंट आप डालेंगे, ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। ईच फोटोन हैज definite DEFINIT definite energy and definite DEFINIT momentum momentum, जो कि मैं पहले एनर्जी तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम, डेफिनेट एनर्जी होती है, डेफिनेट मोमेंटम होता है, जो कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। एनर्जी तो होती है H F, जब एमिशन होता है इसको आप HC अपॉन लैम्डा भी कह सकते हो। और अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम P होता है। अब आप कहो सर एम भी हो जाएगा, ना 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 ना, इस केस में एम भी नहीं होता, ये भाई लीनियर मोशन थोड़ी ना है। या फिर मैं ये कहूँ ये मास इंटू वेलोसिटी, ऐसा नहीं होगा। मोमेंटम इसका होता है H अपॉन लैम्डा, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन लैम्डा डिवाइड दे दो, मोमेंटम आ जाएगा। तो ये होती है एनर्जी, डेफिनेट एनर्जी, और ये होता है डेफिनेट मोमेंटम, ठीक है। अब डालते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट डालो। चलो मैं रब कर देता हूँ, ये नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके सिक्स्थ पॉइंट लिखो। नीचे जाके बच्चे लेकिन लिखना नहीं पड़ता, लिखना झुक के लिखना पड़ता है, दिक्कत होती है। मैं क्या करूँ, वजन में ज्यादा बढ़ रहा है और ये स्पेस कम नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। और सिक्स्थ पॉइंट लिखो। फिफ्थ पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये आपका फिक्स्ड डेफिनेट एनर्जी और फिक्स्ड डेफिनेट मोमेंटम को डिफाइन करता है और फिक्स्ड ही रहता है, समझ रहे हो। और जो अगला पॉइंट है जिससे हम कहते हैं, जिसे हम सिक्स्थ पॉइंट कह रहे हैं, वो भी सेम ही है लेकिन लैंग्वेज अलग है। कह रहा है कि ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी डेफिनेट मोमेंटम। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ में ही कह रहा है। हाँ तो सिक्स्थ पॉइंट बता रहे थे हम। तो सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स ऑफ लाइट, अगर हम किसी फोटोन्स ऑफ लाइट पर्टिकुलर वेवलेंथ कंसीडर करें
तो हम ये कह सकते हैं कि photons of light of a particular wavelength have a same energy and have a same and have a same momentum. तो मैं क्या कह सकता हूँ, photons of light of a particular wavelength have same energy and same momentum. ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर एक सेम वेवलेंथ का अगर आप कंसिडर करोगे तो उसकी जो एनर्जी होगी और जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। इसके बाद 7 पॉइंट बचता है एक और है शायद। 7 पॉइंट कहता है कि ये जो चीजें होती हैं मोमेंटम की और जो भी एनर्जी है, फोटोन्स हैं, जब निकलते हैं, अब भाई फोटोन है निकल रहा है प्लेट से, तो शायद नीचे वाले से निकले, ऊपर वाले से निकले, हम कह नहीं सकते। तो कोलिजन करा के निकले, एनर्जी को लूज करके निकले, अंदर ही टकरा के निकले, कैसे भी निकल सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो भाई कोलिजन भी हो सकता है। तो ये कहते हैं अगर यहाँ पर कोलिजन हुआ इस केस में तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है और वहां पर कंजर्वेशन फॉलो होता है, इन्होंने ये कहा है यहाँ पर। 7 पॉइंट ये कहता है, स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं तो द कोलिजन ऑफ फोटोन, स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं तो द कोलिजन COLLISION, द कोलिजन ऑफ फोटोन अब किसके साथ हो सकता है भाई, मेटल सरफेस या पार्टिकल्स के साथ हो सकता है। फोटोन विद पार्टिकल्स have ये assumed to be a elastic collision, मैं कह सकता हूँ है। हाँ तो अरे वो मेमोरी की वजह से यार वीडियो पॉज हो जाती है और फिर दोबारा ओपन करनी पड़ती है, खाली करूँगा आज। हाँ तो 7 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। 7 पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम शायद। तो द कोलिजन ऑफ फोटोन विद अ पार्टिकल और विद एनी मटेरियल इन अ सरफेस assumed as a perfectly elastic collision, perfectly elastic collision होता है अगर होगा, मीन्स कंजर्वेशन लॉ फॉलो होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो हो रहा है। P1 प्लस P2 बराबर P1 प्लस P2 डैश, ये डैश है। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियली वो फाइनली के इक्वल होगी, तो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। तो बस यही था कि इलास्टिक कोलिजन होता है। तो 8 पॉइंट डेवलप करो, 8 पॉइंट लिखो, चला होता हूँ ऐसा करो, 8 पॉइंट लिखाते हैं। 8 पॉइंट देखो क्या कहता है। 7 समझ में आया? कुछ नहीं, इलास्टिक कोलिजन होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के इक्वल। अब 8 पॉइंट है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड। सुनो क्या कह रहा है, द इंटेंसिटी, ये लैंग्वेज थोड़ी सी थोड़ी बढ़ाई सी, पता नहीं क्या क्या लिख रही है, मैं तुम्हें शॉर्टली बता दूंगा, मोटा मोटा ऐसा। क्या कह रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, if the intensity of the light of a given wavelength पॉज करके लिख देता हूँ भाई साहब, नहीं तो देखो मोटा मोटा ये साहब कह रहा है। 8वां पॉइंट लास्ट पॉइंट है, इसके बाद जो भी नेक्स्ट जो भी बचा है वो आगे डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। क्या कह रहा है 8वां पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर आप बढ़ाओगे और गिवन वेवलेंथ की अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे तो भैया जब फोटोन्स इंक्रीज होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक भी इंक्रीज होगा। अभी वो आप आगे पढ़ोगे, मैं बता दूंगा, लेकिन आप इसे पढ़ोगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज। मोटा मोटा हिसाब है, आप ये याद रखो कि अगर मैंने इंटेंसिटी मोटा मोटा बता, पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप लिख दोगे। इंटेंसिटी अगर आपने बढ़ाई तो भैया नंबर ऑफ फोटोन्स अपने आप बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। ये देखो, इंटेंसिटी की यूनिट वॉट लिख देना, पावर की तरह ट्रीट करते हैं इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी का बेसिक मीनिंग बता देता हूँ। इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी होता है द नंबर ऑफ एनर्जी, सॉरी हाँ,
द एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू पर यूनिट एरिया। मैं लिख देता हूं, इंटेंसिटी एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू पर यूनिट एरिया। मतलब किसी एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है पर सेकंड और कितना एरिया है उसका, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। यूनिट हम हमेशा ज्यादातर यूनिट जनरली वॉट कंसीडर करते हैं, और बेसिक मोटा याद रखो, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फोटोन्स का फर्क पड़ेगा, एनर्जी सेम रहेगी। तो यही था बस, हमने 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पढ़ाएंगे? अभी तो आपको 8 प्रॉपर्टीज बता दें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की। अब अगले दिन जब अगला लेक्चर मिलेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से कैसे कैसे होता है, कितने तरीकों से होता है। और अब लेक्चर को एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी कमिंग सून ऑन द इलेक्ट्रॉन एमिशन, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एंड हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन। थैंक यू, बाय, टाटा।